Good morning students. So today I will teach you how to give the lesson plan for B8. Okay students, so subject is English. I will ask you some questions and then you have to give me some answers. Okay? Okay, ma'am. Where do we see sun? In the sky. Very good. Sit down. Who fly in the sky? Birds. Very nice answer. Tell me the name of few birds. Peacock, pigeon, sparrow, crow, parrot. Very nice. Sit down. What is the color of parrot? Parrot is green color, ma'am. Very good. Now tell me any story of green parrot. Ma'am, I don't know actually. Okay, no problem. So here I will tell you that today we will study the lesson which name is the parrot and the mango. Now the student have to write the on the board the lesson name, the parrot and the mango, and then they have to do the underline. Okay. Okay, ma'am. Now, what we have to do next one, this story which we have to read. The people teacher will read the story in front of the student. So, I am going to read it. There was a parrot, it was green with a red beak. It loved to fly. One day the parrot was flying high, it was flying through a jungle. It looked down, it saw a mango tree. There were lovely yellow mangoes hanging from the branches. It, threw, it thought of having these mangoes. It said to itself, I want to have that big juicy mango. I am tired of flying for so long. In this way, I can rest while eating. It flew down the tree. As it was about to perch on a branch, it heard cow cow, go away from here. This is my tree. The parrot wondered who that could be. It saw a big black crow. The black crow went on cawing. Cow cow, go away. Don't sit on this. The crow had a very loud and harsh voice. The parrot was afraid to see the angry crow, so it flew away disappointed. As the parrot flew, it went past a park. It saw a red balloon stuck its mind. It took the string of the balloon and flew high, sitting where it had left it. As soon as the parrot selected a higher branch above the crow and sat on it, it pecked the balloon with its beak. Blast! Went the balloon with a loud noise. The crow was very scared. It flew away from the tree. Parrot was very happy with its plan. It laughed to itself. It had a nice time enjoying the juicy mango all to itself. It was happy to drive the crow away by its clever plan. So the next step will be the student will read the story. Whatever I have read this story only the student will read. Okay. Then after that, pronunciation drill. In the pronunciation drill, the teacher will write on the board some hard words and the meanings, and she or he will teach the students how to pronounce the hard words. And the next step is the teacher will explain the story. So I'm going to explain this story. There was a parrot. It was green with a red beak. एक बार की बात है, एक पैरट था जो कि ग्रीन कलर का था और उसकी जो बीक थी, चोंच, वो कैसी थी? रेड कलर की. इट लव टू फ्लाई, उसको उड़ना बहुत पसंद था. वन डे द पैरट वॉज फ्लाइंग हाई, इट वॉज फ्लाइंग थ्रू अ जंगल. एक दिन पैरट ऊपर की ओर उड़ रहा था और जंगल के पास से गुजर रहा था. इट लुक डाउन, उसने नीचे की ओर देखा. इट सॉ अ मैंगो ट्री, उसने क्या देखा? एक मैंगो ट्री को देखा.
There were lovely yellow mangoes hanging from the branches. वहाँ पर उस पेड़ पर बहुत सारे लवली मतलब बहुत अच्छे ज्यूसी मैंगोज टंगे हुए थे, लटके हुए थे. हैंगिंग मीन्स होता है लटकना. फ्रॉम द ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांच होती है, शाखाएं, पेड़ की शाखाएं, उस पर वो लटक रहे थे. इट थॉट ऑफ हैविंग दीज मैंगोज, और उसने उन मैंगोज को खाने के लिए सोचा. इट सेड टू इटसेल्फ, उसने अपने खुद से कहा, आई वॉन्ट टू हैव दैट बिग ज्यूसी मैंगोज. उसने कहा कि मुझे ये बिग ज्यूसी मैंगोज खाना है. आई एम टायर्ड ऑफ फ्लाइंग, मैं उड़ उड़ के थक चुका हूँ. फॉर सो लॉन्ग, बहुत देर से. इन दिस वे आई कैन रेस्ट वाइल ईटिंग, इस तरह से अगर मैं मैंगोज खाने के लिए जाऊँगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर सकता हूँ. इट फ्लू डाउन द ट्री, वो ट्री की ओर नीचे उड़ने लगा और जाने लगा. As it was about to perch on a branch, जैसे ही वो उस ब्रांच के ऊपर अपना बसेरा, पर्च यानी होता है बसेरा, करने लगा, तो क्या होता है, इट हर्ड काव काव गो अवे, उसने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ का नाम था काव काव. काव काव कौन करता है, कौआ. तो आगे देखते हैं क्या हो गया. दिस इज माई ट्री, उसने कहा, एक क्रो वहाँ पर बैठा था, उसने कहा कि ये मेरी ट्री है, ये मेरा पेड़ है. द पैरेट वंडर्ड हु दैट कुड बी, पैरेट सोच में पड़ गया कि ये कौन हो सकता है. इट सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, उसने किसको देखा, एक बड़े से कौवे को देखा. द ब्लैक क्रो वेंट ऑन काउइंग काव काव गो अवे, और वो जो कौवा था वो क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली कह रहा था, काव 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 गो अवे फ्रॉम हियर, डोंट सिट ऑन दिस, यहाँ मत बैठो. द क्रो हैड अ वेरी लाउड एंड हार्श वॉइस, जो क्रो की आवाज़ थी वो कैसी थी, बहुत लाउड, लाउड यानी कि बहुत तेज़, और हार्श यानी बहुत कानों को चुभने वाली वॉइस थी. द पैरेट वॉज अफ्रेड टू सी द एंग्री क्रो, पैरेट बहुत डर चुका था उस एंग्री वाले क्रो को देखकर. सो इट फ्लू अवे डिसअपॉइंटेड, तो वो वहाँ से डिसअपॉइंटेड यानी निराश होता है, निराश होके वहाँ से उड़ के चला गया. एंड द पैरेट फ्लू, एज द पैरेट फ्लू इट वेंट पास्ट अ पार्क, जैसे ही पैरेट वहाँ से उड़ा एक पार्क के पास चला गया, एक पार्क था पास में. इट सॉ अ रेड बैलून स्ट्रक इट्स माइंड, एक रेड बैलून उसने वहाँ पर देखा जो कि एक झाड़ी में फंसा हुआ था, तो उसने उसको उठा लिया. इट टुक द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून एंड फ्लू हाई सिटिंग वेयर इट हैड लेफ्ट इट, उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग यानी होता है बैलून का जो धागा होता है, उसको उसने अपनी चोंच से बीक से पकड़ा और उठ के वहीं पर चला गया जहाँ पर वो पहले था. As soon as the parrot selected a higher branch, वो मैंगो ट्री की जो हायर ब्रांच, सबसे ऊंची जो शाखा थी पेड़ की, वहाँ जाकर उसने क्या किया, अबव द क्रो, जहाँ क्रो बैठा था नीचे, उसके ऊपर वाली ब्रांच में जाकर वो बैठ गया. एंड सिट ऑन इट, जाके वो वहाँ पर बैठ गया. इट पैक द बैलून विद इट्स बीक, वहाँ जाके उसने क्या किया, अपनी चोंच से उस जो बैलून लेके आया था उसको फोड़ दिया. ब्लास्ट, जैसे ही उसने उस बैलून को फोड़ा अपनी चोंच से, तो वो क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया. वैन द बैलून विद अ लाउड नॉइज, उसमें से बहुत तेज आवाज़ आई. द क्रो वॉज वेरी स्केर्ड, और वो आवाज़ सुन के क्रो क्या हो गया, बहुत डर गया. स्केर्ड यानी होता है डर जाना. इट फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, और वो उस ट्री से उड़ गया डर के मारे. पैरेट वॉज वेरी हैप्पी विद इट्स प्लान, अपने प्लान से पैरेट बहुत ज़्यादा खुश हो गया. इट लव टू इट सेल्फ, वो खुद के ऊपर हंसने लगा. इट हैड अ नाइस टाइम enjoying द जूसी मैंगो ऑल टू इट सेल्फ, और उसने उस वक्त को बहुत इन्जॉय किया और वो जूसी मैंगोस उसने खाए. इट वॉज हैप्पी टू ड्राइव द क्रो अवे बाय इट्स क्लेवर प्लान, वहाँ से जैसे ही उसने क्रो को भगाया और अपने प्लान में कामयाब हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, खुश हो गया. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है. अब हमारा नेक्स्ट जो होता है लेसन प्लान का, उसमें क्या करते हैं,
एक्सपोजिशन मतलब होता है जो स्टोरी में हार्ड वर्ड्स आते हैं उनको बोर्ड पर समझाया जाता है और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हमको शो किया जाता है। तो अभी मैं आपको ये फ्लैश कार्ड्स मैंने बनाए हैं कुछ, तो उसमें से बताऊंगी। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो पूरा मैंने यहाँ लिखा है, स्ट्रिंग। फिर इसको हिंदी में बोलते हैं डोरी। स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी, अ पीस ऑफ लॉन्ग वायर और रोप। ओके, सो द नेक्स्ट इज beak. Beak. In Hindi, we are telling it चोंच. A hard pointed part of a bird's mouth. Okay. Branch. 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 Branch means shakha. One of the main part of a tree. One of the main part of a tree. Perch. Perch means होता है बसेरा। क्या होता है? बसेरा। Used for birds to sit on a branch of a tree. ये किसके लिए यूज होता है? बर्ड्स के लिए यूज होता है बसेरा। Disappointed. Disappointed. Disappointed means निराश, unhappy. निराश, unhappy. तो ये हमारी हो गई है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, कंप्लीट हो गई है। I will ask to students to do the silent reading. ओके, इसके बाद हमारा होता है साइलेंट रीडिंग, बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं, और उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो जो हमने स्टोरी पढ़ाई है उस स्टोरी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। व्हाट इज द कलर ऑफ द बीक ऑफ द पैरेट? Red color. वेयर वॉज द पैरेट फ्लाई? In the sky. वेरी गुड। व्हाट डिड ही सी while flying? He saw juicy mangoes. Very nice. Why did his mouth water? Because of there was big and juicy mangoes. Very nice answer. Why was the parrot afraid? Afraid of there was a crow Who was very who was angry. angry. Very good. So after that, the people teacher will teach the evaluation questions. जो हमारा लेसन होता है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और वो बच्चों से पूछे जाते हैं, लाइक ऑप्शनल क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर्स, लाइक दैट। तो ये था हमारा लेसन प्लान कि कैसे दिया जाता है, और आगे भी आपको मैं बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बोर्ड दिखा देती हूँ कि किस तरह से इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिखाना है। तो ये फाइनल लेसन के इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट ट्रू एंड फॉल्स है, एंड वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स है। तो ये था हमारा लेसन प्लान। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।